चलिए, थर्ड स्टैंडर्ड की मलबेरी पब्लिकेशन की बहुत नाइस स्टोरी है, वो सुन लेते हैं, लेकिन उसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो। Something unexpected happens. 1. Grandfather went out early one morning to see what kind of a day it was going to be. The sun was rising over the mountains and a light breeze was swaying the trees. He watched as the morning light spread everywhere. Grandfather wheeled the chair out of the shed and went in to call the children. Peter came up at this moment. The goats did not gather round him as usual, but seemed to avoid him, because Peter was angry. For weeks now he had not spoken to Heidi. When he came up in the morning, Heidi's friend Clara was already in her chair, and Heidi was busy with her. She had not come out with the goats once this summer. Today she was going to the mountainside with her friend and the chair. She would surely stay with her the whole time. It was the thought of this which was making him cross. There stood the chair on its high wheels. Peter glared at it as an enemy. He glanced around. There was no one to see him. He went forward and got hold of it, and gave it an angry push in the direction of the slope. The chair rolled forward and down the slope. Peter ran up the mountain, not stopping till he was hiding behind a large blackberry bush. He did not want Grandfather to see him, but he wanted to see what had happened to the chair, and he could see it from behind the bush. He saw the wheelchair go downhill. Then it rolled over and broke into bits. The pieces flew in every direction, and Peter leaped in the air in delight. He was sure Heidi's friend would go back home. She would not be able to move about without the chair. When Heidi was alone again, she would talk to him as in the old days. Heidi now came running out of the hut and could not find the wheelchair. Grandfather was surprised by this. "Oh, we shall not be able to go today," said Clara sadly. "or any other day." "We will go up the mountain as we had planned," answered Grandfather, much to the children's delight. Something unexpected happens. 2. When they reached the spot where the goats usually pastured, they were surprised to find them already feeding there, and Peter with them. "Have you seen the chair?" asked Grandfather. "What chair?" called Peter. Grandfather said no more. He spread the shawls on the sunny slope and placed Clara on them. "Oh, Heidi, it is lovely! It is lovely!" Clara cried, looking round her. The sky was dark blue, and not a single cloud was to be seen. Heidi wanted to go to the spot where the flowers grew, to see if they were as lovely as before. Clara was happy sitting all alone on the mountainside. Heidi reached her field of flowers. There she saw lots of shining yellow cistus flowers among many others. She turned round and ran to Clara's side, out of breath. "Oh, you must come," she said excitedly. "It is more beautiful than you can imagine. I can help you walk." Clara looked at her and shook her head. "Heidi, you are smaller than I am. Oh, if only I could walk." Heidi looked round and saw Peter sitting up above, looking down at them. Heidi called out, "Peter, come down here." Heidi told Peter to hold Clara under the arm on one side, and she would hold her on the other. Together they were to lift her up. But Clara could not even stand, and Heidi was too small for her to lean upon. "You must put one arm around my neck and the other through Peter's," said Heidi. Peter helped them, but it was still difficult. Clara was up one side and down the other, because her supports were of different heights. "Put your foot down firmly once," suggested Heidi. "I am sure it will hurt you less after that." "Do you think so?" said Clara hesitatingly. She followed Heidi's advice and put one step on the ground and then another.
is less painful, she exclaimed joyfully. try again. Said Heidi, and Clara went on putting one foot after another until all at once she called out, I can do it, Heidi. Look, look. I can take proper steps. A delighted Heidi shouted, You can walk now, Clara. You can walk. Clara felt stronger with every step, and Heidi was filled with happiness. Now you will be able to walk about as I do. It is a great joy. Clara heartily agreed. She could think of no greater joy in the world than to be strong and able to walk like other people. आप लोगों ने इंग्लिश एनिमेशन के साथ एक्सप्लेनेशन तो देख लिया। अभी चलते हैं हिंदी देखने के लिए। समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपन पार्ट 1 एंड 2। पहले पार्ट 1 देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गार्डन है। गार्डन की यहाँ एक छोटी सी झोपड़ी है। झोपड़ी में क्लारा नाम की जो लड़की है वो अपने ग्रैंडफादर के साथ रहती है, और ग्रैंडफादर ने उसके प्रॉमिस किया था कि जैसे मॉर्निंग हो जाएगी वो उसको घुमाने के लिए बाहर लेके जाएंगे। तो इसीलिए वो बाहर आके देख रहे हैं। तो सन अच्छे से निकल चुका है, लेकिन पता नहीं आज का दिन कैसे होगा। वो उसे गोद में उठा के, नहीं तो व्हील चेयर पे इतने ऊंचाई वाली प्लेस पे कैसे लेके जाएंगे, इसके बारे में वो सोच रहे थे। उन्होंने पूरा एरिया देख लिया अच्छे से। पूरी धूप खिल रही थी। मॉर्निंग का सीन जो था वो बहुत ही प्यारा लग रहा था, और ऐसे मौसम में उन्होंने सोचा कि मैं व्हील चेयर लेके आज क्लारा को बाहर घुमाऊंगा। जग में दूसरे बच्चे जो होते हैं वो कैसे खेलते हैं वो दिखाऊंगा। तभी पीटर जो है उस झोपड़े की तरफ वो आने की कोशिश कर रहा है। वो चल रहा है। उसकी जो बकरियां थी वो चरने के लिए उसने छोड़ दी थी। फिर इधर उधर उसने कहीं पे भी देखा नहीं, और तुरंत वो गया। एक्चुअली पीटर जो है, पीटर की जो दोस्त है हैदी, वो बहुत दिनों से उसके साथ बोला नहीं है, क्योंकि हैदी जो है ये आजकल क्लारा से मिलने के लिए आती है, उसके साथ ही बातें करती रहती है, और वो पीटर को हमेशा इग्नोर करती रहती है। तो इसीलिए वो पीटर जो है ये इससे बहुत नफरत करता है। तो हैदी जो है ये अपनी फ्रेंड क्लारा के साथ, क्लारा जो है ये व्हील चेयर पर बैठी हुई है, और ये दोनों बातचीत कर रहे हैं। तभी पीटर बाहर से देख रहा था। उसकी जो बकरियां थी, भेड़ बकरियां, वो चर रही है, खाना मतलब घास फूस खा रही है। और तभी उसने सोचा कि अगर ऐसे कुछ हो जाए, इसकी अगर ये चेयर टूट जाए, ये नहीं आ सकेगी वहाँ पे, हमेशा आती है वहाँ पे, और ये दोनों एक दूसरे के साथ बातें भी नहीं करेंगे। तो नेचुरली हैदी जो है ये पीटर के साथ आ जाएगी और उसके साथ बातें करेगी। तो उसने क्या किया, उसने जो दादाजी ने जो व्हील चेयर वहाँ पे क्लारा को लिए लाई थी वो उसने देखी, और पीटर एक विलन की तरह काम करना चाहता था, वो वही सोच रहा था। उसने इधर उधर देख लिया कि मुझे ऐसे करते हुए किसी ने देखना नहीं चाहिए, मैं पकड़ा नहीं जाना चाहिए, वो ऐसा चाहता था। और उसने क्या किया, व्हील चेयर को ज़ोर से ऐसी जगह पर लेके गया कि जहाँ पे स्लोप है, और वो स्लोप वाली जगह पे, फिसलन वाली जगह पे उसने उस चेयर को धक्का दे दिया। अब चेयर जो है ये रोल करते करते गिरने की कोशिश, मतलब माउंटेन का जो हिल रहता है उसका स्लोपिंग रहता है, उसके ऊपर उसने फेंक दिया था। तो वो नीचे आके एक जगह पे जाके टूट गई थी। अब ये इसे किसी ने देखना नहीं चाहिए, इसलिए ये बड़े से पेड़ के नीचे, बुश के नीचे घुस गया, और उसने देखा कि जो ग्रैंडफादर है वो तो नहीं आ रहे, किसी ने इसे देखा तो नहीं, ये सब देख रहा था। लेकिन मन ही मन सोच रहा था कि मैंने जो चेयर को पुश करके फेंक दिया है उसका क्या हाल हुआ होगा। वो देखने के लिए फिर से वो उठ गया, और उठने के बाद उसने देखा कि सच्ची में जो व्हील चेयर उसने फेंकी है ये टूटी तो नहीं है। देखने के लिए सोच रहा था। तभी उसका ध्यान गया, व्हील चेयर सच्ची में टुकड़े टुकड़े हो चुकी थी। उसने देखा, अरे बाप रे, इतनी बुरी तरह से उसके टुकड़े हो गए थे कि इसको बनने में नियरली अब ज़्यादा दिन, मतलब 15 दिन, महीना भी लग सकता था। और इसी खुशी में वो जोर जोर से नाचने लग गया था। तभी उसके दिमाग में आया था कि अब क्लारा घर में बैठी रहेगी, और हैदी जो है ये इसके साथ मिलने के लिए, बातें करने के लिए आ जाएगी। वो दोनों मिलके खेलेंगे। क्लारा जो है बिना व्हील चेयर के खेलती नहीं, जाती नहीं, कहीं पे
उसको पैर ही नहीं तो वो कैसे, मतलब पैर है लेकिन वो चल नहीं सकती थी। और उसको पुरानी वाली बातें याद आ गई जहाँ पे हैदी और वो बहुत सारी बातें करते थे। हैदी जो है ये क्लारा से बोलने के बाद वो बाहर निकली और उसने व्हील चेयर को यहाँ वहाँ ढूंढना शुरू कर दिया। उसने ग्रैंडफादर को भी पूछा। ग्रैंडफादर को बड़ी हैरानी हुई, मैंने तो यहीं पर ला के रखी थी। तब क्लेरा बेचारी दुखी हो जाती और बोलती है, ओह नो, आज मैं नहीं जा सकती बाहर। क्लेरा बहुत दुखी हो गई थी और दुख के मारे वो बोल रही थी, चलो ठीक है, किसी और दिन जाएंगे। लेकिन ग्रैंडफादर जो है वो बोलते हैं, नहीं, मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था, मैं कैसे भी हालत में तुम्हें हिल दिखाऊंगा, माउंटेन के ऊपर खेलने के लिए लेके जाऊंगा। और बच्चे जो है दोनों के दोनों डिलाइट हो गए। वो सोचने लगे अब दादाजी क्या करेंगे। आपको पता है ग्रैंडफादर ने क्या किया। ग्रैंडफादर ने क्लारा को अपने गोदी में उठा लिया और गोदी में उठाने के बाद वो निकल पड़े जहाँ पे उन्होंने सोचा था क्लारा को लाने के लिए। अब क्लारा को उठा के वो ला रहे थे। एक्चुअली वो खुद भी बूढ़े हैं। पीटर एक जगह पे अपनी भेड़ बकरियों को छोड़ के बैठा है, आराम से बैठा है, क्योंकि उसे पता है कि क्लारा अभी कुछ भी चल नहीं सकती और व्हीलचेयर के बिना तो बिल्कुल नहीं। दादाजी भूल गए हैं कि उनके हाथ से जो चेयर है वो तो टूट गई है, फिर भी ये ऐसे नाटक कर रहा है। पीटर, कौन सी चेयर ऐसे पूछ रहे हैं। तभी ग्रैंडफादर को याद आ जाता है कि व्हीलचेयर तो खो गई है। फिर उन्होंने शॉल जो है वो ज़मीन पे डाल दी, बिछा दी और क्लारा को उस शॉल के ऊपर बिठा दिया। दादाजी अपना काम करने के लिए थोड़ा घास फूस देखने के लिए चले गए। तभी क्लारा जो है वो बोलती है हैदी से कि हैदी देखो कितना सुंदर, आजू बाजू में कितने अच्छे फ्लावर्स, कितना प्यारा सीन है। स्काई देखो कितना ब्लू लग रहा है और कितनी प्यारे सभी चीज़ें लग रही हैं। अब हैदी जो है ये हैदी ऐसी वाली जगह ढूंढना चाहती थी कि जहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स हैं। वो ढूंढने लगी, जा रही थी। क्लेयर बहुत हैप्पी थी। वो आराम से बैठी थी, अकेली बैठी है और वो सारे और देख रही है। हैदी जो है ये हैदी अब फ्लावर का जो फील्ड होता है उसकी ओर बढ़ चुकी थी और येलो कलर के बहुत प्यारे प्यारे फूल उसको दिख गए थे। वो बहुत सारे थे और सारे के सारे फूल उसे देखकर इतना खुश हो गई थी हैदी कि हैदी तुरंत क्लारा की ओर दौड़ पड़ी और जैसे वो क्लारा के पास आई तब उसने जोर जोर से सांसें ली और बोली, ओह क्लारा, तुम्हें पता है मैं ऐसी जगह पे गई थी जहाँ बहुत प्यारे, इससे भी प्यारा सीन है, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती। मैं तुम्हें मदद करूँगी और तुम चल सकोगी। क्लारा ने उसकी तरफ देखा और फिर बोला, हैदी तुम बहुत छोटी हो, मैं तुमसे बड़ी हूँ, मैं कैसे चल सकती हूँ। नहीं, हाँ, काश मैं कभी चल सकती थी, लेकिन तो हैदी ने आजू बाजू में देखा, उसे पीटर बैठा हुआ दिखाई दिया। वो जोर जोर से पीटर को आवाज़ देने लगी, अरे पीटर, ओए पीटर, इधर तो आ। और जैसे हैदी ने उसे बुलाया तो पीटर भाग भाग के हैदी के पास आ गया, क्योंकि हैदी और पीटर जो है ये दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। उसने बोला कि क्लारा को तुम आम में उठा लो और मैं भी उसे सहारा देती हूँ और दोनों उसे मदद करते हैं चलने के लिए। उसे उठाएंगे और उठा के मैं जहाँ बोलूँगी वहाँ पे लेके जाएंगे। दोनों ने उसके आर्म्स पकड़ लिए दोनों साइड से और उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन हैदी जो है ये हैदी, उसका हाइट छोटा है, वो उम्र में छोटी है, तो एक साइड से लोड ज़्यादा हो गया था। अब क्या करें, सोचने लग गए तो हैदी बोली, एक काम करो, तुम्हारे आर्म्स मेरे गले में डाल दो, एक उसके गले में डाल दो और फिर तुम उठो। फिर उन्होंने ऐसे ही किया। जैसे वो उठाने लग गए, क्लारा अब थोड़ी थोड़ी ऊपर चलने लगी थी, फिर भी
हैदी जो है इसकी हाइट के कारण वो थोड़ा झुकने लगी थी। हैदी उसे बार बार सपोर्ट कर रही थी और बोल रही थी, तुम एक स्टेप तो डाल के देखो। जब तुम पहली स्टेप डालोगी दूसरी स्टेप्स के लिए ऑटोमेटिक तुम्हें स्ट्रॉन्गनेस फील हो जाएगा। और जैसे जैसे हैदी बता रही थी क्लैरा वैसे करने का सोच रही थी। उसने अपना पैर उठाया। तुम ऐसे सोचती हो तो मैं करती हूँ। ऐसे बोलते हुए क्लैरा ने अपना एक पैर उठा के डालने की कोशिश की, चलने की कोशिश की। ओह, वो तो चल चुकी थी पहला स्टेप। फिर हैदी और सब बहुत खुश हो गए थे। फिर उसने दूसरा स्टेप्स डाल दिया। हैदी उसे पूछ रही है, तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है? तब क्लैरा बोलती है, बहुत कम दर्द हो रहा है, लेकिन मैं चलने की कोशिश कर रही हूँ, इससे मुझे बहुत हैप्पीनेस फील हो रहा है। और एक के बाद एक क्लैरा अपने स्टेप्स डालती गई और थोड़ी ही देर में वो चल रही थी। उसे फील हो रहा था। एक्चुअली हेदी उसे बार बार बोल रही थी और हेदी का वो सुन रही थी। क्लैरा भी उसे बार बार बोल रही थी, ये जो मैं चल रही हूँ, ये फीलिंग, ये हैप्पीनेस मैं तुम्हें बता नहीं सकती मुझे कितना हैप्पीनेस फील हो रहा है। और हैदी जो है ये बार बार उसे चल रही थी कि बता रही थी कि तुम चल रही हो। और क्लैरा को भी स्ट्रॉन्गनेस फील हो रहा था। दोनों भी बहुत हैप्पी थे। वो चल रही थी। हाँ, दोनों तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के जा रहे थे। पीटर को ज़्यादा खुशी नहीं हो रही थी, लेकिन क्लैरा को चलते हुए देखते हैदी खुश हो रही थी। और हैदी को खुश देख के, और वो पहली बार क्लैरा चल रही थी तो वो भी बहुत अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस कर रही थी। तो ये अनएक्सपेक्टेड थिंग यहाँ पे हो गई है। आप लोगों को शायद से क्लैरा की और हैदी की ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए मैं बहुत आभारी हूँ और ऐसे ही देखते रहिए ना।